Hello, beautiful brains. This is your mentor, Aprajita. Let's start the class 6 Social Science Civics. And today we are going to start chapter number 24. Forms of the government. In the previous chapter we had read about the government. Government के बारे में पढ़ा था हमने पिछले chapter में. आज हम पढ़ेंगे forms of the government. And in this chapter we are going to read about forms of government, then functioning of a democratic government, participation and accountability in the union government, participation and accountability in states, districts and villages, then resolution of conflict and concerns for equality and justice. These are the topics we are going to cover in this chapter. Let's start with forms of government. By the form of government means the powers exercised by those in authority and the functions performed by them. अभी forms of government का मतलब क्या होता है? It means कि जो powers वो authorities जो कि और functions जो कि वो perform करते हैं जो उस government में होते हैं, okay? उन authorities के powers and functions जो कि वो perform करते हैं, they form a government. That means the form of government. The form of a government can be classified on different grounds. अलग-अलग grounds पे इसका classification किया जा सकता है. For our basic understanding in this class, we shall restrict our study to the following classification. Just for your class, for your understanding, आपके समझने के लिए इसको इन में classify किया गया है. Democratic government. The first one is democratic government. A democratic government is elected by the people for a fixed term. Democratic government जो होता है वो उसको elect कौन करता है, choose कौन करता है, वो लोगों द्वारा elect किया जाता है और एक fixed time के लिए. That is, the government can be changed by the people in elections. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को चेंज भी किया जा सकता है. जब भी इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे दूसरे कैंडिडेट को वोट करके उसको चेंज किया जा सकता है. इट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल इट्स एक्शंस. द सिटीजंस आर गिवन सर्टेन बेसिक और फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या है, ये जो सिटीजंस हैं इनको कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ बेसिक राइट्स या कह लीजिए फंडामेंटल राइट्स वो दिए गए हैं. It looks after the needs of the people as well as it allows the people to raise their voice. और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों की ज़रूरतों की देखभाल करता है और लोग अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. नेक्स्ट वन इज authoritarian government. An authoritarian government holds the power by force and it cannot be changed by the people. Authoritarian government को लोग change नहीं कर सकते हैं. It is not answerable to the people और वो answerable भी नहीं है लोगों को. Rights and liberties depend on the sweet will of the government. और इसकी जो rights और liberties हैं, लोगों को जो rights और liberties मिलती हैं वो totally government की अपनी इच्छा है. An authoritarian government is concerned to its own interests. It does not allow the people to express themselves. Authoritarian government में लोगों को खुद को express करने का कोई right नहीं होता है. Next is the parliamentary government. In a parliamentary government, the head of the state and the head of the government are two different people. Parliamentary government में जो state का head होता है और जो government का head होता है वो दो अलग-अलग लोग होते हैं. The head of the state has only nominal powers and the head of the government has the real powers. State के head के पास तो बहुत कम powers होते हैं, nominal powers होते हैं और जो government का head होता है असली power उसके पास होता है. The head of the government is a member of the legislature and is answerable to the legislature. और जो गवर्नमेंट का हेड है वो लेजिस्लेचर का मेंबर होता है और उसको लेजिस्लेटर को ही आंसर देना होता है. The head of the government remains in the office so long he enjoys the confidence of the legislature.
and can be removed from his office by majority vote. और गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट का हेड होता है, वो तब तक ही ऑफिस में काम कर सकता है जब तक कि वो लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है, और उसको रिमूव भी किया जा सकता है मेजॉरिटी वोट से. इंडिया एंड ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया और ब्रिटेन में कैसा गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. In a presidential government, the president is the real executive. A presidential government में जो president होता है वो real executive होता है. The president is not a member of the legislature and is not answerable to the legislature. और जो president है ये legislature का member नहीं होता है और उसको legislature को answer भी नहीं करना होता है. He remains in the office for a fixed term and cannot be removed from his office एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट. और वो अपने ऑफिस में एक फिक्स टर्म के लिए होता है. अमेरिका एंड ब्राज़ील आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्राज़ील में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नाउ सी, दिस इज व्हाइट हाउस इन अमेरिका एंड दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. नाउ फैक्ट टू नो, the subjects on which laws can be made by the Indian government are divided into 3 lists. अब laws जो इंडियन गवर्नमेंट बना सकती है उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सब्जेक्ट्स? द यूनियन लिस्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट्स एंड द कॉन्करेंट लिस्ट फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. However, if both of them make laws on a subject, the union law shall prevail. Next is the unitary government. In a unitary government, all the powers are centralized in a single union government. सारे जो powers होते हैं वो कहाँ centralized होते हैं? Single union government में. The powers of the union government are absolute. It is effective when the territory under its control is small. और ये unitary government कहाँ effective होता है? जब वो territory कंट्रोल में होती है उनकी. द कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन. वी कैन फाइंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स इन ब्रिटेन एंड चाइना. ब्रिटेन और चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट्स देखने को मिलते हैं. फेडरल गवर्नमेंट. इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर आर 2 टायर्स ऑफ अथॉरिटी. द फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स. When the territory is large, it is better to have a federal government. जब territory बड़ी होती है तो वहाँ पे federal government होना अच्छा होता है. In a federal government, all laws made in the country have to be in conformance to the constitution. The judiciary is supreme in a federal government. और एक federal government में जो supreme कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? judiciary. Judiciary is the supreme. It interprets the laws made by the federal and provincial governments. Federal और provincial governments द्वारा जो laws बनाए जाते हैं उसको वो interpret करता है. It also settles any disputes arising between federal and provinces and between or among provinces. Federal governments can be found in America and India. America और India में federal governments भी देखने को मिलते हैं. फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है? देयर आर 2 मेजर फंक्शंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. अब 2 मेजर फंक्शंस कौन से हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ द पीपल. कलेक्टिव सैंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर ओपिनियन. Collective sanction or will of the people is manifested in certain types of government. A government backed by the collective sanction of the people is a popular government and enjoys the confidence of the people. अब जो भी government जो जिनका बैकअप कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ पीपल होता है वो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है. क्या? द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, लोगों का भरोसा. On the contrary, a government that does not heed to the collective sanction of the people is not popular, and we can see popular movements rising against such governments. और जिन गवर्नमेंट्स में कलेक्टिव सैंक्शन नहीं होता, जिसे कहते हैं पॉपुलर ओपिनियन नहीं होता है, वो
कभी भी जनता का जो विश्वास है वो गेन नहीं कर पाती है एंड उनके खिलाफ बहुत सारे दूसरे पॉपुलर मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट वी सी पॉपुलर मूवमेंट्स इन बर्मा, इराक एंड पाकिस्तान। इन चाइना सच मूवमेंट्स आर रूथलेसली क्रश्ड। और ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे कुछ दूसरे पॉपुलर मूवमेंट्स बर्मा, इराक और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, लेकिन चाइना में ऐसे मूवमेंट्स को क्रश कर दिया जाता है। अ डेमोक्रेसी मैनिफेस्ट collective sanction of the people, so we can call it the best form of government. डेमोक्रेसी में क्या है? कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ पीपल होता है, सो इसीलिए उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। कलेक्टिव सैंक्शन इज द मेजॉरिटी व्यू। It is not possible for a large population to hold similar or uniform views on all matters. अब इतना लार्ज नंबर में जो पॉपुलेशन है और ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी पॉपुलेशन एक ही तरह के व्यूज़ रखे, यूनिफॉर्म व्यूज़ हो सबके। Therefore, when the people who support an idea or a project are more numerous than the people who oppose it, we can say that it is the collective sanction of the people. तो जब भी कोई आइडिया आता है या प्रोजेक्ट होता है, उसके सपोर्ट में अगर बहुत सारे लोग हैं और उसके अपोजिशन में कम लोग हैं, तो उसे कहा जा सकता है कि ये कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ पीपल है। कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ द पीपल इज एक्सप्रेस्ड टू द गवर्नमेंट बाय अ नंबर ऑफ मीन्स। लाइक अब कलेक्टिव सैंक्शन ऑफ पीपल कैसे एक्सप्रेस किया जाता है गवर्नमेंट को? बहुत सारे मीन्स हैं उसके, लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस कलेक्टिव सैंक्शन। और इस कलेक्टिव सैंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़, टेलीविज़न, डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सेट्रा। It is essential that the representative government works according to the collective sanction. और जो representative government है, ये ज़रूरी हो जाता है कि वो collective sanction के according अपना work करे। If a government works contrary to the collective sanction, it may have to face problems. Also, it may not be re-elected in the next elections. और अगर कोई government collective sanction के against काम करती है, उनको ध्यान में न रखते हुए वर्क करती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है वो गवर्नमेंट, और हो सकता है कि उस गवर्नमेंट को री इलेक्ट न करें लोग। अ स्टेट इज फॉर्म्ड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। एक स्टेट कैसे फॉर्म होता है? अलग अलग क्लासेस के लोग होते हैं उसमें। देयर आर सर्टेन माइनॉरिटीज हुज नंबर मे नॉट बी सफिशिएंट टू फॉर्म द कलेक्टिव सैंक्शन। और कुछ माइनॉरिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके नंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि एक कलेक्टिव सैंक्शन बना सके। समटाइम्स इट इज़ सीन दैट द गवर्नमेंट टेक्स सर्टेन वेलफेयर मेजर्स फॉर द माइनॉरिटी ग्रुप्स विच गो अगेंस्ट द विश ऑफ द मेजॉरिटी बिकॉज दे आर प्रेजुडिस्ड। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती है इन माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, और जो कि मेजॉरिटी के विशेस के अगेंस्ट हो जाता है। Such things are done by the government with the vote bank in view. In view of such dirty politics, the political atmosphere of the country may be vitiated. So, a government should avoid such measures. Now, participation and accountability in the union government. In our country, all political posts are filled up by the popular vote directly or indirectly. अब हमारी कंट्री में जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं वो कैसे फिल होते हैं? पॉपुलर वोटिंग के थ्रू, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाईकैमरल, दैट इज इट कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज। बाई मीन्स 2, बाईकैमरल है क्योंकि इसमें 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। The members of the Lok Sabha are elected directly by the people. लोक सभा के members को कौन elect करता है? Directly लोग करते हैं। And the majority party forms the government. और जो majority party होती है वो government form करती है। Sometimes no party enjoys majority in the लोक सभा। और कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी पूरा majority, full majority enjoy नहीं करती है। In such a case, 2 or more parties come together to form a coalition.
विपक्ष में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आ जाती हैं। द लीडर ऑफ द कोएलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, और जो इनका लीडर होता है वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल इनडायरेक्टली। अब लोकसभा के मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। That is, they are elected by the representatives who were elected by the people. लोगों ने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, उनके द्वारा जब वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है किसी को, वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है। The Prime Minister forms his Council of Ministers, also called the Cabinet. जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करते हैं, जिनको कैबिनेट कहा जाता है, फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो कैबिनेट में होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट अ पर्सन एज अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज, बट सच पर्सन हैज टू बी इलेक्टेड टू वन ऑफ दीज हाउसेज विद इन 6 months। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे किसी पर्सन को भी इलेक्ट कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसे इलेक्टेड पर्सन को विद इन 6 months किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज इलेक्टेड बाय द, प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। ही इज इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल। All government business is carried in the name of the president. जितना भी गवर्नमेंट बिजनेस होता है सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है, बट ही इज ओनली द नॉमिनल हेड। लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड होता है। He has to act according to the advice rendered by the Council of Ministers headed by Prime Minister. वो एक्ट उसी के अकॉर्डिंग करता है जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। The ministers are responsible to the parliament. Ministers parliament को responsible के लिए responsible होते हैं, individually और collectively. If the parliament rejects any action of the council of ministers, one or all ministers have to resign. और अगर पार्लियामेंट किसी भी एक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी भी एक्शन को रिजेक्ट कर देता है, तो वन और ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन। या तो एक मिनिस्टर को, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को, या सभी मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। इन द स्टेट्स द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब स्टेट में कौन हेड होता है? गवर्नर। हु हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और ये जो गवर्नर है वो किस तरह से एक्ट करता है? किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे, जिसे कि कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर, विच इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट असेंबली, द मेंबर्स ऑफ हुज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन डिस्ट्रिक्ट्स द चेयरमैन ऑफ अ नगर निगम कॉल्ड मेयर और महापौर। अब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन ऑफ नगर निगम, जिन्हें कि मेयर या महापौर भी कहा जाता है, इज रिस्पॉन्सिबल टू द म्यूनिसिपल कमिटी, द मेंबर्स ऑफ विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन विलेजेस द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। और विलेजेस में जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। सी, he is our Prime Minister Shri Narendra Modi and she is Honorable President Draupadi Murmu of India. Okay, both are the Prime Minister of India and President of India. Resolution of conflict. The government of India functions at the center, in the states, in the districts and in villages. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे फंक्शन करती है? एट द सेंटर, सेंटर में फंक्शन करती है। एज सच इट इज़ अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स। और ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये डिफरेंट अलग अलग लेवल्स पे फंक्शन करती है। Some differences of opinions or conflicts can rise in its functioning. अब फंक्शनिंग के दौरान कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी उत्पन्न हो सकते हैं या कुछ डिफरेंसेस भी आ सकते हैं।
The conflicts between the two houses of parliament are resolved at the joint session of the parliament. और ये जो दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कहाँ रिजॉल्व किया जाता है? जब जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है. The conflicts between center and states and between among states are resolved by mutual talks and the assistance of the Supreme Court or High Court can be taken. अब जो states के अंदर conflicts चल रहे हैं between center and states, तो उसे कौन resolve करता है? mutual talk से और assistant या Supreme Court या High Court का assistance लेके. The conflicts between government and citizens and between or among citizens are resolved by the courts of law. और जो conflicts government और citizens के बीच या citizens के ही बीच में चल रहे हैं उन्हें courts of law resolve करते हैं. Concerns for equality and justice. Now see here, first look here. Sharing river water is a cause of conflict between states. ये रिवर वाटर की जो शेयरिंग होती है ये एक बड़ा कॉज है स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का. नाउ कंसर्न्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी एंड जस्टिस आर टू एसेंशियल्स विच अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मस्ट पोजेस. एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इट्स ऑब्जेक्टिव एज जस्टिस एंड इक्वालिटी. जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें क्या डिक्लेरेशन है? इट्स ऑब्जेक्टिव एज जस्टिस एंड इक्वालिटी. इट एम्स टू गिव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल पीपल एंड गिव देम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. नाउ सोशल जस्टिस was ensured to them as all people have made equal before law, have been made equal before law. सोशल जस्टिस जो है वो इंश्योर किया जाता है क्योंकि सारे लोग जो हैं कानून के सामने एक बराबर होते हैं. पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय गिविंग एवरी एडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट. और पॉलिटिकल जस्टिस कैसे दिया गया है? हर सिटीजन को कि एडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट दे के ये पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है. एवरी सिटीजन हैज़ अ सिंगल वोट. हर एक सिटीजन का एक एक वोट होता है. ऑल सिटीजन्स होल्ड अ सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक जस्टिस इज द नीड ऑफ द आवर. इकोनॉमिक जस्टिस नीड है आर की. सो द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशंस वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. Under it, certain posts in the government and seats in educational institutions were reserved for scheduled castes (SC), scheduled tribes (ST), and other backward classes (OBC). The people belonging to SC, ST, and OBC enjoy reservation for admission to educational institutions also. अब गवर्नमेंट के कुछ पोस्ट पे या कुछ सीट्स पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कुछ सीट्स पे जो सीट्स होती हैं, कुछ एक सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसीज के लिए. अ सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ द रिजर्वेशन इज दैट मेरिट इज ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड. और इस रिजर्वेशन का एक सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि जो भी मेरिट लिस्ट में आता है वो कभी कभी एडमिशन से रह जाता है इस रिजर्वेशन की वजह से. फाइन, बिकॉज सम सीट्स आर रिजर्व्ड. उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है. मेरिट लिस्ट में जितने भी सीट्स बच जाती हैं वो बच्चे बाकी के मेरिट लिस्ट में, और अगर मेरिट वो सीट फुल हो गई है तो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे रह जाते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है. सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन. When a post needing expertise is filled by a less proficient person, the development and progress of the country is seriously compromised. अब रिजर्वेशन में क्या होता है, एक 50% स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर लिया जाता है उस पोस्ट के लिए. कैंडिडेट जो 50% स्कोर कर रहा है वो रिजर्वेशन में आता है और उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है. लेकिन वो जो मेरिट में आया हुआ कैंडिडेट है वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसका नहीं हो पाता. और जो 50% है या कम, जो प्रोफिशिएंसी जिसकी कम है वो अपॉइंट हो जाता है.
तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज सीरियसली कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज होता है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कंट्री का। So all deprived people, whether belonging to high caste or low caste, should be given maximum educational facilities as per their aptitude and attitude. So children, what we have read here in this chapter, let's revise it through these important facts. A democratic government gives liberty to its citizens while authoritarian one corrupts them. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लिबर्टी मिलती है लोगों को, सिटीजन्स को, लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में नहीं मिलती। देयर इज वन हेड ऑफ द स्टेट इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वाइल इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर आर separate heads of states and head of government. A government can be federal or unitary depending on its arrangement of sharing of powers between the union and the province. A government backed by collective sanctions enjoys the confidence of people. जिस गवर्नमेंट में बैकअप होता है कलेक्टिव सैंक्शन का, वो एंजॉय करती है लोगों का भरोसा। Collective sanction of the people is expressed by several means. The Constitution of India has dealt with equality and justice to the people nicely. Now the exercise here children, objective type questions. Take the right option. A dash government gives liberty to its citizens. कौन से गवर्नमेंट में citizens को liberty मिलती है? Democratic, authoritarian, both of these. In democratic government, all citizens hold a dash citizenship of India. Double, single, both of these. They hold a single citizenship of India. America and Brazil are good examples of dash form of government. America और Brazil में कौन से form of government हैं? Presidential, parliamentary, none of these. Presidential form of government. Dash is the head of the state of India. Prime Minister, President, Chief Justice. President is the head of the state of India. Okay? Now, fill in the blanks. A dash government is elected for a fixed term. कौन सा government एक fixed term के लिए elect होती है? It's a democratic government. Democratic government. Okay? In a presidential government, the president cannot be removed from his post except by, अपने पोस्ट से प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता है except impeachment, except by impeachment, P-E-A-C-H-M-E-N-T, impeachment. The Council of Ministers is headed by the, कौन head करता है Council of Ministers को? Is headed by the Prime Minister. Prime Minister. Fine children? And the last one is, 3 types of justice mentioned in the Constitution are economic, dash and political. Economic, social and political. Okay children, understood? I hope you have understood the chapter 2 and stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter again and something new to read. Till then, have a very good time. Stay blessed. Bye.